गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. कालच्या लेक्चरमध्ये आपण ह्यूमन रिस्पिरेशन हा टॉपिक सुरू केलेला आहे. त्यामध्ये व्हॉट इज रिस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गॅसेस इन प्लांट्स हे आपण स्टडी केलेलं आहे. आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला स्टडी करायचं आहे नेक्स्ट पॉइंट, that is respiration in animals or respiratory system in animals. ॲनिमल मध्ये श्वसन कशा पद्धतीने होतो, कारण हा टॉपिक आपल्याला ॲनिमलच्या रिस्पिरेशनशी रिलेटेड आहे. म्हणून इन डिटेल मॅक्झिमम जे काही पोर्शन आहे तो मॅक्झिमम पोर्शन आपल्याला रिस्पिरेशन इन ॲनिमल्सशी रिलेटेड आहे. त्यात ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टीम इन डिटेल्स आहे. सो ट्राय टू अंडरस्टँड ऑन दिस अर्थ देर इज अ ऑकरन्स ऑफ डायव्हर्सिटी इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. मीन्स दॅट different type of organisms are present on this earth. So in relation to respiratory system, their body organization, complexity of the body organization having responsible for different respiratory organs or different respiratory systems. So try to understand in case of protista, the respiration is carried out by means of the plasma membrane, means the covering of their body automatically directly helpful for respiration purpose. The next point is that in case of that is the insects, there is a presence of tracheal tubes as well as the spiracles, small holes present on the body. They are helpful for the respiration purpose. In case of that is the amphibians like frog, there is a presence of external gills for the respiration purpose. Fourth point is that in case of the fishes, they are aquatic in nature. In case of that is the fishes, there is a presence of internal gills for their respiration purpose. Next and last, highly evolved organisms like that birds, reptiles and mammals, there is a presence of lungs. That lungs is a respiratory organ. So try to understand, these are the 5 points related to the different group of organisms, show the diversity also in respiratory system. Okay, so today in detail you studied about the respiratory system in human. So please on the video just observe first of all, because this point is lengthy. So this diagram is divided into that is the 2 videos. इसको हमने 2 वीडियोस में डिवाइड किया है. तो सबसे पहली जो इंट्रोडक्शन के बाद फर्स्ट हेडिंग है रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन. In case of respiratory system of human, this diagram is necessary. Here try to understand, जेव्हा तुम्ही परीक्षेमध्ये डायग्राम्स ड्रॉ करता तेव्हा तुम्हाला ही आउटलाईन काढण्याची गरज नाही. आउटलाईन काढण्याची गरज का नाही? कारण आउटलाईन नाही काढली तरी काही प्रॉब्लेम येत नाही. फक्त तुम्हाला इंटरनल स्ट्रक्चर तेवढं काढण्याची गरज आहे. हे जे इंटरनल स्ट्रक्चर जिथून नॉस्ट्रिल्स प्रेझेंट आहे तिथून तुम्हाला ती डायग्राम अप टू द लंग्स काढण्याची गरज आहे. आणि म्हणून जनरली आउटलाईन काढल्यामुळे टाइम तर एक तर जातो आणि त्याची गरज नाही. त्याच्यामुळे फक्त इंटरनल पार्ट तेवढा ड्रॉ करायचा.
So try to understand, this is the human respiratory system, and this human respiratory system have different respiratory organs, and that different respiratory organs are, that is the nose, that is the nostrils, then second point is the pharynx, then larynx, then trachea. यहाँ पे आप जो पॉइंटर है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है नाम फैरिंग्स है, फैरिंग्स के बाद लैरिंग्स है, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के बाद लंग्स है, और लंग्स के ऊपर जो दिख रहे हैं वो रिब्स है। ये देखो पॉइंटर की तरफ, ये सेकंड, ये देखो ये थर्ड, ये देखो फोर्थ, ये जो स्ट्रक्चर है वो रिब्स है। और सबसे नीचे जो रेड कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द डायफ्राम। ऑल दीज आर द रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन केस ऑफ that is the human respiratory system. Okay, so just study one by one. In case of human respiratory system, there is a presence of, that is the two systems, that is the external respiratory system and internal respiratory system, or it is simply called as the upper respiratory system or lower respiratory system. So in case of upper respiratory system, there is the presence of external nares, nasal chambers, nasal cavity, that is the part of nose, then that is the trachea, and lower respiratory part जो रहता है, उस lower respiratory part में जो larynx है ना, उसके बाद ट्रैकिया है, उसके बाद फैरिंग्स है, उसके बाद लंग्स है, उसके बाद अल्वियोला है, उसके बाद ब्रोंका है, ब्रोंकाइल्स, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं वो उसके लोअर रिस्पिरेटरी पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। सो द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू, दैट इज द अपर एंड लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, just you have to study in detail about the nasal cavities, nasal chambers, nasal cavities, nasal chambers, यानी नोज का पार्ट। सो सबसे पहले जो नोज होता है हमारा, यहाँ पे जो डायग्राम में दिखाई देता है, यहाँ पे देखो ये जो नासल चेम्बर का जो एक्सटर्नल पार्ट है, ये एक्सटर्नल पार्ट यहाँ पे दिखाई देता है, दिस इज कॉल्ड एज द नोज। अभी ये जो नोज है, इसमें दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग्स होते हैं हमारे नाक के, इसे बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। ये हमारे बॉडी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहता है, बॉडी सरफेस के ऊपर वो हमें दिखाई देता है, बाहर से दिखाई देता है, इसलिए इसको एक तो एक्सटर्नल रिस्पिरेटरी पार्ट बोलते हैं या अपर रिस्पिरेटरी पार्ट भी बोल सकते हैं। अभी इसमें जो आपको दिखाई देता है, that nostrils are get extended into the nasal chamber। ये जो पूरा नोज का हमारे जो रीजन होता है उसको हम नासल चेम्बर्स बोलते हैं। मगर ये जो नासल चेम्बर्स है, they are get divided into the two nasal cavities, and that two nasal cavities यानी दो नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं हमारे नोज के, उसको डिवाइड करता है मेसेथमॉइड कार्टिलेज, यानी दो नेयर्स जो होते हैं, जो दो कैविटीज यहाँ पे जो दिखाई देते हैं हमारे नोज में, उसके बीचों बीच एक पार्टीशन होता है। वो पार्टीशन कार्टिलेज की मदद से बनता है और उस कार्टिलेज का नाम होता है मेसेथमॉइड कार्टिलेज, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्चुअली ये जो नोज है हमारा क्या काम करता है, हे जे नाक आहे ते आपलं काय काम करतं, तर दॅट इज सिम्पली हेल्पफुल फॉर ब्रीदिंग, यानी इनटेकिंग ऑफ O2 एंड रिलीजिंग ऑफ CO, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है, राइट। ये हमारे नोज का पर्पस है। सो
इसके आगे का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो हमारा नोज है वो नोज 3 पॉइंट में डिवाइड होता है, 3 पॉइंट में डिवाइड होता है। यानी जो एकदम जो सामने का पोर्शन होता है नोज का, पॉइंट की तरफ ध्यान दीजिए, एकदम आगे का जो पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। उसके बाद उसके आगे का जो पोर्शन होता है, उसके आगे का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं रिस्पिरेटरी पार्ट। और उसके आगे जो पोर्शन होता है एकदम लोअर मोस्ट पीछे का पोर्शन, उसे हम बोलते हैं दैट इज द क्या बोलते हैं सेंसरी पार्ट। राइट, समझ में आ गया। नोज के 3 पार्ट होते हैं, नाकाचे 3 पार्ट असतात, एकदम समोरचा वेस्टिब्यूल, मधला मिडल रिस्पिरेटरी पार्ट आणि त्याच्या मागचा पार्ट सेन्सरी पार्ट। मी डायग्राम मध्ये दाखवतोय, माझ्या बॉडीवर दाखवतोय, तुम्ही तुमच्या बॉडीवर चेक करत राहा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय द वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है, सबसे आगे का जो पोर्शन है वेस्टिब्यूल, वो क्या होता है। वेस्टिब्यूल इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर नोज। नाकाचा सगळ्यात समोरचा भाग जो आहे त्याला वेस्टिब्यूल म्हटलं जातं। इन दॅट वेस्टिब्यूल देर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्मॉल डेलिकेट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इंटरनली, नॉट ऑन द अपर साइड। नाकाच्या वरच्या साइडला वर केस नसतात, नाकाच्या आतल्या साइडला नॉस्ट्रिल्सच्या वेस्टिब्यूल रिजन पुरते स्मॉल डेलिकेट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट असतात। दॅट हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ॲट द इंटरनल साइड ऑफ वेस्टिब्यूल अँड दे आर हेल्पफुल। ते कामाचे आहेत, बिनकामी नाही। आपल्याकडे काही लोक म्हणतात हे नाकामध्ये केस आहेत, घाण छी, परंतु ते केस असल्यामुळे नेमका त्याचा फायदा काय होतो, दे आर हेल्पफुल टू कॅच द डस्ट पार्टिकल्स ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। जेव्हा आपण श्वासोश्वास घेतो, ब्रीदिंग करतो, तेव्हा एअर सोबत जाणारे जे डस्ट पार्टिकल्स आहेत त्यांना कॅच करून ठेवण्याचं काम कोण करतं, तर दॅट इज नथिंग बट दी वेस्टिब्यूल्स मधले हेअर्स करतात। दॅट इज द स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ दॅट वेस्टिब्यूल। सेकंड पॉइंट इज द रिस्पिरेटरी पार्ट। सेकंड पॉइंट इज द रिस्पिरेटरी पार्ट। ये जो रिस्पिरेटरी पार्ट होता है दैट रिस्पिरेटरी पार्ट इज म्यूकस इन नेचर। इंटरनली वो कैसा होता है, म्यूकस, स्टिकी होता है। उसकी मदद से ये पार्ट क्या काम करता है हमारे बॉडी में ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन, दैट इज हेल्पफुल फॉर मॉइस्चरिंग एंड वार्मिंग द एक्सटर्नल एयर्स। मॉइस्चरिंग एंड वार्मिंग द एक्सटर्नल एयर। इसका मतलब क्या है मालूम है, जेव्हा बाहेरून हवा आपल्या बॉडीच्या आतमध्ये जाते तेव्हा ती डायरेक्ट जात नाही, तर नाकामध्ये आल्याच्या नंतर ती मॉइस्ट होते, ती वॉर्म होते, उष्ण होते आणि आपल्या बॉडीच्या इंटरनल रिजनला ऍडजस्टेबल हवा आतमध्ये जात असते। राइट, दिस इज कॉल्ड एज द क्या बोलते हैं, इट इज यूज्ड फॉर द वार्मिंग एंड मॉइस्चरिंग of that is the external air, and this is the structure and function of that is the middle part of nose, that is called as the respiratory part. And the last one, that is the third one, is that is called as क्या बोलते हैं इसको हम, अभी मैंने बताया था सेंसरी पार्ट। सेंसरी पार्ट का मतलब क्या है, सिंपल है, that is helpful for the detection of smell, है ना, डिटेक्शन ऑफ स्मेल। हमें जो अच्छा स्मेल आता है, बुरा स्मेल आता है ना, घर में जो पकाया है उसका स्मेल आता है ना, हम अगर गार्बेज की तरफ जा रहे हैं तो उसका स्मेल आता है ना। ये जो स्मेलिंग का जो मैकेनिज्म है उसको डिटेक्ट करने का काम कौन करता है, दैट इज द सेंसरी पार्ट करता है। राइट, दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ आवर नोज। ये नोज के हमारे 3 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये पूरे इस नासल चेंबर और नासल कैविटीज में प्रेजेंट होते हैं और इनके ये सभी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। उसके बाद नोज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है फेरिंग्स का, PHARYNX, जो आपको यहाँ पे दिखता है ना, एकदम आपको लगेगा कि ये बहुत दूर है, ये देखो ये बहुत दूर है। यहाँ पे फेरिंग्स जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फेरिंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो फेरिंग्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे ये देखो। यानी इसका मतलब क्या है, जब नोज एक्सटेंड होता है ना, नोज पहले इस वर्टिकल डायरेक्शन में इंक्लाइन जाता है,
बाद में नीचे आता है और नीचे आके ओपन होता है इस फेरिंग्स में। किसमें ओपन होता है? इस फेरिंग्स में ओपन होता है। एक्चुअली फेरिंग्स है क्या? इट इज अ कॉमन पैसेज बिटवीन रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये दोनों में कॉमन रीजन होता है, जो हम बोलते हैं ना पचन संस्था और श्वसन संस्था, इन दोनों संस्था का जो कॉमन पॉइंट है उसे बोलते हैं फेरिंग्स, क्योंकि वहां पे फूड भी जाता है और वहां पे हवा भी जाती है। एक्चुअली it is just a tube-like structure, near about 10 centimeter long, elongated, extended tube present in between, that is the nose and larynx and nose के बीच में जो extended region आपको दिखता है उसे हम बोलते हैं pharynx। pharynx में 3 पार्ट होते हैं, that is the oropharynx, laryngopharynx, nasopharynx। जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है नासोफैरिंग्स, उसके बाद होता है ओरोफैरिंग्स, और सबसे नीचे का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं लैरिंगोफैरिंग्स। ये 3 पार्ट में ये ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर डिवाइड होता है और ये कॉमन पॉइंट है रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद जो फैरिंग्स है एक्चुअली वो नीचे आने के बाद वो एक्सटेंड होता है और कन्वर्ट होता है लैरिंग्स में। थर्ड पॉइंट, अभी यहाँ नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स इज कॉमनली कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स, इसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इसका एक दूसरा नाम है एडम्स एप्पल, इसका दूसरा नाम है एडम्स एप्पल। अब ये जो वॉइस बॉक्स है, क्यों बोलते हैं इसको वॉइस बॉक्स? याला वॉइस बॉक्स का म्हटलं जातं? बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द साऊंड। हे आवाज क्रिएट करतं, हे साऊंड क्रिएट करतं आणि म्हणून आपण त्याला व्हॉइस बॉक्स अथवा एडम्स एप्पल असं म्हणतो। ऍक्च्युअली हे जे काही लॅरिंग्स आहे दे आर लार्जर इन केस ऑफ द मेल, समवॉट लार्जर इन केस ऑफ द मेल, व्हाइल स्मॉलर इन केस ऑफ दॅट इज द फिमेल्स। आता याचा फरक काय बघा की व्होकल कॉर्ड्स जे असतात लॅरिंग्स मधले ते मेल मध्ये थोडासा मोठा साऊंड क्रिएट करतात आणि फिमेल्स मध्ये जे आहे ते व्होकल कॉर्ड छोटे असल्या कारणाने किंवा लॅरिंग्स साईज छोटी असल्या कारणाने त्यांच्यामध्ये जो साऊंड आहे तो कमी प्रमाणामध्ये। दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन मेल अँड फिमेल अबाउट द एडम्स एप्पल और व्हॉइस बॉक्स। सो ट्राय टू अंडरस्टँड that larynx is commonly called as voice box because they are responsible to produce the sound. In case of that is the larynx, there is a presence of vocal cords. They are elastic in nature. They are elastic in nature. वो elastic in nature के होते हैं और जो vocal cords होते हैं उनके वाइब्रेशन की मदद से साउंड क्रिएट होता है। एक्चुअली साउंड कैसे क्रिएट होता है? जो vocal cord का पैसेज रहता है, एयर पैसेज, और जो मॉड्यूलेशंस ऑफ आवर टंग, आवर टीथ, आवर लिप्स, आवर नासल कैविटी है ना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की मदद से या दोघांच्या कॉम्बिनेशन मुळे साऊंड क्रिएट होतो। दोन साइडला 2 व्होकल कॉर्ड्स असतात, व्होकल कॉर्ड्सच्या मध्ये पॅसेज असतो, या पॅसेज दरम्यान हवा पास होत असते आणि हवा पास होत असताना त्याला मदत होते आपल्या जिभेची, आपल्या दातांची, आपल्या लिप्स ओठांची आणि आपल्या नासल कॅव्हिटीची, आणि यांच्या कॉम्बिनेशन मधून साऊंड क्रिएट होत असतो आणि तो साऊंड नंतर मग पुढे ऐकायला येत असतो। दिस इज द क्रिएशन ऑफ साऊंड ओनली ड्यू टू द that is the these two phenomena. Okay, next point is that is the larynx extends, means at the end of that is the trachea there is a presence of a small natural opening, and the small natural opening is called as the glottis, उसको हम glottis बोलते हैं। और वो जो glottis है उसके ऊपर एक फ्लैप होती है, फ्लैप है ना। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, समझो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये होल लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते हैं ग्लॉटिस, राइट। ये ट्रैकिया के
सॉरी जो फेरिंग्स है उसके एंड में रहता है, जो लैरिंग्स के पहले, तो वहाँ पे एक छोटा सा ग्लॉटिस होता है, ये होल, और उसके ऊपर एक ऐसा फ्लैप होता है, इसको बोलते हैं इपीग्लॉटिस, इसको बोलते हैं इपीग्लॉटिस। इपी यानी अबो, ग्लॉटिस यानी ग्लॉटिस के ऊपर रहता है ये फ्लैप, है ना। जब हवा आती है नोज में से अंदर तो ये इपीग्लॉटिस ऊपर होता है और हवा अंदर चली जाती है। जब फूड पार्टिकल आता है यानी बोलस, घास ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो, जब बोलस आता है तब ये फ्लैप उसके ऊपर कवर होती है, यानी डस्ट पार्टिकल उस ग्लॉटिस के अंदर नहीं जाता, यानी फूड पार्टिकल प्रिवेंट्स that epiglottis. This glottis and epiglottis are also present at the end of, that is the pharynx in case of the larynx, and they are helpful to prevent the entry of food particles in food pipe, that is the trachea. So try to understand, these are the 3 points and their introduction and different type of the, that is the respiratory organs present in protista, then fish, then amphibians, then reptiles, then mammals, etc. And these 3 points, that is the nose, then pharynx, then larynx, and in next lecture we studied about the next respiratory organs of, that is the human. Thank you.